Welcome everyone. Welcome to another episode of our new interview series. And we today we have very special guest with us, and he started his career as an employee at retail, medical, and grown to the top level and went bankrupt for the two times. And he would like to share all his strategies and tactics how you can be a cash flow how you can manage your cash flow and grow your income. And he's somewhere started his coaching journey right now recently, and he's a cash flow expert and made over 87 lakhs in last 17 months. Now he's helping investors, traders with to help with the cash flow game. So we are thrilled to have Jagdish ji today with us, and he will be sharing the insights and strategies how to create a sustainable cash flow and live a financial and stress-free life. So without further ado, so let's welcome and listen from Jagdish ji. Welcome Jagdish ji to our interview show. So how's it everything going on? Thank you, sir. Life is, like heaven. Okay, always for us, whether we were poor or whether we are rich now, right? Mm-hmm. Yes. Can you just tell us like your journey, like how you become a cash flow expert? What is something that inspired you to become a cash flow expert? Okay, great. Thank you. Thank you for asking this question, Sagarji. So I would like to tell you a little about my story, and sometime I will start in Hindi, English. Okay, will be No mixed. problem. Okay. Mm-hmm. Oh. So in our Maharashtra, Dhule city is our one beautiful city where I born and brought up here. And till 10th standard I was in Hindi school, and 11th and 12th we are college hota hai yahan par 11th and 12th ke liye. So I studied in Marathi language, okay, arts faculty. उसके बाद जरा परिस्थिति जो है घर का अच्छा नहीं था, तो पिताजी ने बोला कि बड़ा भाई आपका कहीं नौकरी पे लग गया है, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड अ जॉब एंड डू अ जॉब. देन एक रिटेल मेडिकल स्टोर्स पे स्वीपर झाड़ू लगाने का काम करता था मैं, काउंटर पोंछना, झूठे गिलास उठाना, मेहमानों को चाय ला के देना, दिस टाइप ऑफ वर्क्स I did. 800 rupees was my first salary at retail medical stores. And मजे की बात बताऊं आपको, I spent 4 years, okay, and one day medical representative, पता है आपको medical हाँ, representative? MR, I know that, हाँ, yes. तो एक medical representative आया. They used to ask us question, okay, because our medical stores was leading medical stores in Dhule city, Bhagat medical store, and they used to ask question. ये डॉक्टर का पर्चा आपके पास आता है क्या, ये डॉक्टर का आता है क्या? हम कहते थे हाँ. तो वो पूछते थे डॉक्टर सागर संगम साहू क्या लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में. सो आई यूज्ड टू से हाँ ये लिखते हैं, वो लिखते हैं, इसकी हम 100 बॉटल बेचते हैं. आई यूज्ड टू से हम इसकी 100 बॉटल महीने में बेचते हैं, ये 200 बॉक्स बेचते हैं, ये हम इतनी टैबलेट्स बेचते हैं. सो ही वाज लिसनिंग एंड उसको ऐसा लगा यार इसका बहुत हो गया, इतनी बॉटल बेचते हैं और कुछ तो बोलूं मैं इसको. सो ही यूज्ड टू से कि देखो यार आप नहीं बेचते हो, आप पोस्टमैन हो. तो मैं बोला हम पोस्टमैन है, इसका क्या मतलब है? सो मुझे गुस्सा आया. मैंने बोला पहले आप मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या होता है, पोस्टमैन, व्हाट डज इट मीन? तो बोलता है हम दवा की कंपनी में काम करते हैं, दवा की कंपनी दवा बनाती है, हमको वहां बुलाती है, हमको दिखाती है, ट्रेनिंग देती है और बताती है कि डॉक्टर से बात करो कि ये दवा कैसे काम करती है, बाकी दवाओं से कैसी इकोनॉमिकल है, और कुछ सैंपल देती है, हम वो डॉक्टर को देते हैं ताकि वो नजदीक के पेशेंट को दे के पता करे, फीडबैक ले कि भाई आपको दवा का असर कैसा, कितना, कितने दिन में हुआ. सो डॉक्टर सेटिस्फाई होता है तो देन ही यूज्ड टू राइट, ही यूज्ड टू प्रिस्क्राइब टू अनदर पेशेंट्स एज वेल. फिर वो पर्चा आपके पास आता है एंड यू या जस्ट गोस टू स्टॉकिस्ट और खरीद के लाते हो और उसको देते हो. तो आप क्या हो, पोस्टमैन ही हो ना, स्टॉकिस्ट से लाना और पेशेंट को देना. व्हाट इज इट? उसने कहा ये तो पोस्टमैन वाला ही काम है. दैट्स व्हाई आई सेड यू आर नॉट सेल्स पर्सन, आप ये मत बोलो कि हम बेचते. सो माय ईगो वेंट हर्ट. ओके, मतलब अगर ऐसा है ना तो मैं भी बेच के दिखाता हूँ, चलो. एंड देन आई वेंट टू फॉर इंटरव्यू. मजे की बात है, इंटरव्यू पे गया, उसने वो लेके गया बायोडाटा वगैरह, उसने बाहर से ही भगा दिया. वो लड़की थी बाहर, उसने बाहर से ही भगा दिया.
और बोला कि हम आपको संपर्क करेंगे, सर ने बोला है आप अभी जा सकते हैं। तो मैं आ गया घर खुशी खुशी, भैया को बोला मेरा सिलेक्शन हो गया है। बोले क्या हुआ मुझे बता। मैंने ऐसा गया, उधर लड़की थी बाहर, उसने देखा और उसने बोला कि आप यू कैन गो, वी विल कॉल यू। तो वो कॉल करने वाले हैं। तो मेरे भाई ने पूछा वो कॉल कहाँ करेंगे, तेरा नंबर है उनके पास? मैंने यार मेरा नंबर तो नहीं है, ये तो सही बात है। तो बोले कहाँ कॉल करेंगे वो? तो वो बड़ा भाई है ना, वो तो 4 साल बड़ा है, वो समझदार है, वो बीएससी ग्रेजुएट है। तो वो बोला कि उसने आपको बोला गेट आउट, अपना रास्ता नापो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो मैं बोला ऐसा क्यों बोला उसने? तो बोला क्योंकि यू आर नॉट डिग्री होल्डर, उनको बी फार्मेसी चाहिए, डी फार्मेसी चाहिए, बीएससी चाहिए, एटलीस्ट बीकॉम तो चाहिए। बट आई वॉज नॉट ग्रेजुएट पर्सन एट दैट टाइम, स्टिल नॉट, डिग्री तो अभी भी मेरे पास नहीं है। तो मैंने ऐसा है क्या, अभी तो करना ही है, अभी उसको छोड़ना नहीं, अभी करेंगे। सो आई वेंट ऑन टू गिव इंटरव्यू, 25 30 40 50 इंटरव्यू हो गए, नोबडी इज गोइंग टू सिलेक्ट, एंड आई वाज रिजेक्टेड माल सागर जी एट दैट टाइम, रिजेक्टेड माल। तो एक कंपनी का एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव छोड़ के जाने वाला था, तो 1 मंथ बिफोर इंटीमेशन देना होता है ना, तो स्टॉकिस्ट को चाहिए था कोई लड़का ढूंढे, कंपनी वाला उसको बोल रहा था। तो स्टॉकिस्ट ने उसको कहा कि एक बंदा है पर वो, उसके पास डिग्री वगैरह नहीं है, पर पैशनेट है, करके देगा आपको काम। तो बोले ऐसा है, डन। वो बोले उसको सैलरी नहीं देते हैं, उसको 9% 9% कमीशन देते हैं, 9% कमीशन ऑन 40,000 रुपीज सेल्स, एंड अबव 40,000 अगर आंकड़ा जाता है तो जो भी अमाउंट होगी उसका 15%। एंड श्री फार्मास्यूटिकल में पहला जॉब मुझे लगा। और मजे की बात देखो क्या हुई, उधर 1 1.5 साल जॉब करने के बाद वन बायोडाइन रेमेडीज इज इथिकल कंपनी, उसने उठा लिया। बोले आओ इथिकल कंपनी में आ जाओ, अच्छी ट्रेनिंग देंगे, प्रोविडेंट फंड अमुक धमुक ये सब देंगे। सो आई वेंट इनटू बायोडाइन रेमेडीज, आई लॉन्च इन धुले सिटी बायोडाइन रेमेडीज। बहुत अच्छा सेल उठा के दिया। यू नो कोई भी नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट पूरे महाराष्ट्र में होता था तो आवर बॉसेस यूज्ड टू से जगदीश भगत की कैटेगरी टेरिटरी में भेज दो, ओके, उसकी टेरिटरी में भेज दो, वो बेच डालेगा। और वो मेरे पास बेचते थे, जो प्रोडक्ट कोई बेचता नहीं था मैं नियर एक्सपायरी भी बेच देता था। जिंदगी बहुत हसीन चल रही थी। एक मोहन अग्रवाल करके भाई साहब है, वो देख रहे थे ये सब तामझाम, और वो हमारे स्टॉकिस्ट थे ना बायोडाइन रेमेडीज के, तो वो तामझाम देख रहे थे। तो उनको ऐसा लगा यार ये बंदे में गट्स है, कभी कभी अपने को पता नहीं होता है। अभी जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे उनको खुद को ही नहीं पता है उनके अंदर कितनी पोटेंशियल है। तो हमें नहीं करेक्ट। पता होता है, लेकिन हमें जो बाहर से देख रहा होता है ना, फ्रॉम थर्ड आई, उसको पता होता है अरे यार ये बंदे में पोटेंशियल है। सो उनको लगा मोहन अग्रवाल जी को बंदे में पोटेंशियल है। उन्होंने मुंदड़ा साहब को फोन लगाया, ब्लिस इन्फ्यूजन्स के मालिक थे वो, नासिक की ये इन्फ्यूजन्स बनाने वाली कंपनी, सलाइन होती है ना, सलाइन बनाने वाली। एंड ही कॉल्ड हिम, उनको कहा कि ऐसा ऐसा एक लड़का है, ये ना अकेला काम कर रहा है, ये 2 3 लड़कों को ट्रेन कर सकता है, ही कैन बिकम एरिया सेल्स मैनेजर, ओके। एंड मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि 30 40 इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन हो रहा है अपना, तो एरिया बिजनेस मैनेजर तो छोड़ ही दो। पर उन्होंने देखा, वो मुंदड़ा साहब को बोला, पर उसके पास डिग्री नहीं है। मुंदड़ा साहब तो बिजनेसमैन थे, बोले मेरे को डिग्री चाटनी है क्या उसकी, ओके, आप मुझे बताओ धंधा लाके देगा क्या? बोले हाँ धंधा बहुत लाके देगा। बोले ठीक है, डन करते। एंड इन्होंने मुझे 3 डिस्ट्रिक्ट दिए, एरिया सेल्स मैनेजर बनाया, जिंदगी हसीन चल रही थी। देन अगेन बायोडाइन रेमेडीज केम इनटू पिक्चर। उन्होंने बोला कम टू अस, we will give you 4 districts, this and this package, and you need to do as a area business manager in Biodyne Remedies, 4 डिस्ट्रिक्ट देते। so I went into Biodyne Remedies once again। बहुत बढ़िया जिंदगी चल रहा था। 2000 का सैलरी, मेडिकल का छोड़ करके टाई वाई लगा के घूमने का मस्त, शादी वादी हो गई थी, वो टाई चश्मा गॉगल लगा के। कौन सी ईयर की बात है, व्हिच ईयर? ये हो गई थी 2002 के आसपास। अच्छा, मतलब शादी मेरी तो 2001 में हुई, और 96 में मैं जॉब लगा, 2000 को मैंने वो जॉब छोड़ा, और 1 1.5 साल ये चल रहा था, तो शादी हो गई 2001 दिसंबर में। एंड देन बढ़िया जिंदगी बहुत हसीन चल रहा था, मैं एरिया बिजनेस मैनेजर एंड गोइंग ऑन। सो एक दिन क्या हुआ, वो आरएसएम के साथ में पंगा हो गया।
वो हर महीने आते थे, जितना टारगेट देते थे हम पूरा करते थे, अगले महीने आके डबल की बात करते थे, अगले महीने आके डबल की बात करते थे। तो एक दिन खोपड़ी सटक गई। मैंने बोला यार ऐसा नहीं चलेगा। तो बोले नहीं ये तो करना पड़ेगा। तो मैं रेजिग्नेशन उनको उधर ही लिख के दे दिया। मैं अभी मेरे को नौकरी नहीं करने की, आई विल डू माय ओन बिजनेस। ओ वैसे बॉस फायर करता है ना, इधर आई हैड फायर्ड माय बॉस। ओके, अजीबो गरीब हरकतें की हमने। एंड सागर जी जब एक महीना हुआ तब डिमांड ड्राफ्ट आते थे, ये गूगल पे वगैरह तो तब था नहीं। डिमांड ड्राफ्ट आते थे तो पहला सैलरी नहीं आया, दूसरा महीना खाली गया। जब पैसा नहीं आया ना, तो पता चलने लगा कि आटे दाल का भाव क्या होता है। पत्नी के देखने का नजरिया, घर वालों के देखने का नजरिया, दोस्तों के देखने का नजरिया, रिश्तेदारों के देखने का नजरिया। वो सामने से दोस्त आता था तो दूसरी गली में मुड़ जाता था देख के कि यार बंदा बैंकरप्ट हो गया, अभी काम धंधा है नहीं, रिकामा है, कहीं मुझसे पैसा ना मांग ले। ऐसा ऐसा जीवन था। बट हमने तय कर रखा था कि बिजनेस करेंगे, सो वी स्टार्टेड आवर कंप्यूटर फेरिफेरल बिजनेस। उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, वी डिड वेल। वेदर उसमें भी बहुत दिक्कतें हुई, पहले 2 महीने में चोरी हो गई, छत तोड़ के चोर अंदर आया, हार्ड डिस्क, रोम, क्या कहते हैं, हार्ड महंगे महंगे जो चीजें होती हैं कंप्यूटर की, वो लेके गया, फ्लॉपी डिस्क उसके कवर छोड़ के गया। वेरी इंटेलिजेंट चोर था वो। बट हम वापस स्टैंड हुए और हमने बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा किया। और हमने गोल्ड लिया, हमने प्रॉपर्टी ली, भाई की शादी की, वी बिकेम रिच पर्सन एट दैट टाइम। ओके, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। एक एक दिन फुल बारिश हुई, दिन भर बारिश, रात को बारिश, फुल फुल बारिश। उस बारिश में चोकअप होने की वजह से सभी शॉप्स जो थे उनमें पानी भर गया, हमारी भी शॉप में पानी भर गया। एंड 17 लाख रुपए का माल एक ही रात में भीग गया, एक ही रात में। 17 लाख रुपीज नुकसान हुआ एट दैट टाइम इन 2009, वेयर गोल्ड वाज 8,000 रुपीज पर 10 ग्राम। उस समय उसका रेट था सोने का 8,000 रुपए में 1 तोला 10 ग्राम सोना मिलता था एट दैट टाइम। हमारा 17 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और जिनको पैसा देना था वो सर पे आके बैठे, जिनसे लेना था वो सब गायब हो गए। एवरीबडी मिस्टर इंडिया बिकेम मिस्टर इंडिया, गायब हो गए। तो अभी क्या करें? तो हमने प्रॉपर्टी, हमारी नीयत अच्छी थी, हमने प्रॉपर्टी बेच के उनका पैसा दिया, गोल्ड बेच के दिया, जैसा भी किया, थोड़ा समय मांगा, उनको लौटा दिया पैसा। बट क्या हुआ, हम वापस बैंकरप्ट हो गए ना। जो हमने कमाया था, प्लॉट लिया था, घर लिया था, ये सब हमको बेचना पड़ गया। और वो बेच बुचा के जब हमने वो पैसा दिया, see, if you are poor person, it's okay. When once experience the glimpse of richness and then fell down, तो वो रीढ़ की हड्डी और ज्यादा जोर से टूटती है। ओके, और फिर देखो, फिर लोगों का नजरिया, समाज के, रिलेटिव के देखने का, फिर वो क्या कहते हैं कि च से शुरू होने वाली गाली देते हैं, इनको समझता नहीं है, अक्कल नहीं है, पैसा बना के प्रॉपर्टी क्या बेचने के लिए होती है, ऐसा ऐसा करके उन्होंने डीमोटिवेट करने का काम करते हैं लोग। इट वॉज अ वेरी पेनफुल डेज, राइट। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक जायसवाल साहब हमारी जिंदगी में आए, बोले ऐसा ऐसा है, ये 3200 का पॉलिसी खरीद लो और घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी बैंकरप्ट आइटम हो गए हो आप, है तो कुछ नहीं आपके पास अभी करने के लिए, जब तक और कुछ आता है तब तक ये करो। मैंने बोला यार आपकी भी बात सही है। तो उनके साथ हमने पॉलिसीज बेचना स्टार्ट किया। आफ्टर 1 month आई हैड कम टू नो दैट दीज GIC पॉलिसीज इज द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और जब वो पता चला कि नेटवर्क की ताकत क्या होती है, देन फुल फ्लेज में हमने उसको शुरू कर दिया। एंड 23 अप्रैल 2009, 23 अप्रैल 2009 is my joining date in that particular company. And on 11/11/11 I became diamond and I got 29 lakh rupees check. Wow. 29 lakh rupees check and became diamond on that day. Very happy. नया कार ले लिया, फिर प्लॉट ले लिया, फिर घर ले लिया, वापस वो सब सिस्टम जो है शुरू हो गया। बट भगवान को फिर और कुछ मंजूर था। आफ्टर सम इयर्स, 1-2 साल के बाद क्या हुआ,
एक दिन हम उठे तो पता चला कंपनी बंद हो गई, सो 3 लाख रुपए महीना आने वाली इनकम सडनली बंद हो गई। तो अभी मैंने कहा यार बस हो गया, अभी हम खुद का ही कंपनी शुरू करेंगे जिसमें कंट्रोल अपने पास होना चाहिए। ओके, मीनवाइल इन सारी चीजों में हम बोर्ड गेम कैश फ्लो खेल रहे थे। रॉबर्ट कियोसाकी की बोर्ड गेम कैश फ्लो गेम है, तब इंडिया में मिलती नहीं थी, हमने मंगाई थी यूएसए से भी आती नहीं थी। एक बार ईबे ने एक स्कीम लाया कि आप कुछ भी अमेरिका से मंगाएंगे तो शिप चार्जेस कस्टम हम आपसे नहीं लेंगे, ऐसा कुछ समथिंग उनका आया था स्कीम। सो वो इंक्लूडेड था शायद कस्टम और शिपमेंट उसमें। तो 17,000 आई स्पेंड एट दैट टाइम, और पत्नी से गाली खाई थी, और उसको खेलना शुरू किया। एंड आई अंडरस्टूड सम स्ट्रेटजीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बोर्ड गेम कैश फ्लो, which is for passive income. So if you generate cash flow generating any asset, if you create any asset which is cash flow generating asset for you, so it become your passive income source. And at that time when I was in network marketing company, I was enjoying, but I was getting income as well because team जो है वो काम कर रही थी। So Robert Kiyosaki also says in Rich Dad Poor Dad book which I read कि network marketing business is also one of the asset class. Yes. Then I applied all the asset classes. फिर वो एक कंपनी है यहाँ कृष्णा एग्री साइंस, आई मेट 6 people 6 पार्टनर्स इन दैट कंपनी, और हमारी एनर्जी रिजोनेट हो गई और हमने सोचा, बात किया, एनर्जी रिजोनेट होने का खुद का कंपनी शुरू करेंगे। देन वी स्टार्टेड आवर ओन कंपनी कृष्णा एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो 7 हम डायरेक्टर थे, आई वॉज मार्केटिंग डायरेक्टर इन दैट कंपनी, और वी डिड वेल। 23 राज्यों में हमने उसका काम पहुंचा दिया बहुत ही कम समय में। एंड कोविड के बाद तो बहुत अच्छा स्पीड मिला। एंड उनके सामने मैंने ये प्रस्ताव रखा कि बोर्ड गेम कैश फ्लो के ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, बट समहाउ उनको ऐसा लगा कि दिस विल नॉट वर्क। आई बिलीव दैट दिस विल वर्क, they believe that this will not work. So I said that what will we do. 10 साल के बाद एग्जिट स्ट्रेटजी बनाई थी ना हमने कि 10 साल बाद मैं छोड़ दूंगा। अभी 7-8 साल हुए हैं, एंड आई फील दैट कि आई कैन डू दैट ऑन माय ओन एज वेल। सो ऐसा कीजिए, मेरे जो स्टेक है वो ले लीजिए जैसा अपना डिसाइड हुआ था। सो मेरा जो स्टेक था, दे बॉट बैक कंपनी, बाय बैक कर लिए कंपनी ने। I got the money, I invested the money, became financially free at the age of 42. Now this is my passion, right? To help traders and investors generate cash flow through creating assets by playing board game cash flow. उसमें भी स्टॉक मार्केट में भी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से पैसिव इनकम जनरेट करने में मैं मदद करता हूँ। वो वी हैव कैश फ्लो कम्युनिटी एज वेल। सो इस तरीके से ये ऑनलाइन का जो जर्नी है शुरू हुआ सागर जी। वेरी वेरी इंस्पायरिंग जगदीश जी, लाइक बहुत इंस्पायरिंग लगा कि आपकी पूरी जर्नी एंड आपका वाई बहुत स्ट्रांग है। एंड तो अगर कोई एक न्यू पर्सन है, वो अभी स्टार्ट कर रहा है, लेट्स सपोज कुछ भी वो स्टार्ट कर रहा है, लाइक हाउ दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। आप मतलब एक समझा सकते हैं द वेरी लेमन लैंग्वेज में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो? ओके, सी देयर आर 2 words, one is a cash, the another is a flow, right? है ना, एक पैसा है, एक पैसे का बहाव है, right? So many people get the income और उनका पैसा खत्म हो जाता है। So cash flow gets in and cash flow goes out. Those are poor people according to Mr. Robert Kiyosaki in Rich Dad Poor Dad. Some people are middle class people who is having 2 BHK 1 BHK, they have car as well, but the 2 BHK is having EMI also. They bought on loan, they bought car on loan, so car EMI is there, credit card EMI is there. So रोटी कपड़ा मकान किराया टैक्स ये मनोरंजन ये खर्चा तो मिडिल क्लास को भी लागू है, बट उसके साथ साथ उसका कैश फ्लो जो है वो EMI के माध्यम से भी बाहर जाता है। सो दीज पीपल कॉल्ड मिडिल क्लास पर्सनैलिटीज। एंड थर्ड वन इज अ रिच पीपल। नाउ हु इज रिच पर्सन? रिच पर्सन का मतलब ऐसा नहीं कि अंबानी अडानी बन गए तो रिच पर्सन है, दे आर अल्ट्रा रिच पर्सन। ओके, रिच पर्सन आर दोज पर्सन who are having assets which assets are giving them income.
Very simple. Rich people focused on creating assets which will giving them, income, whether they are working physically or not. Passive income. Yes, passive income. So the funda of that board game cash flow is to, create multiple asset classes which will give you positive cash flow. Okay. Positive cash flow. So you don't have to work for money. Money will work for you. Very simple. So that is what cash flow. And many people are struggling. कैश फ्लो अंदर आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. ओके, उनको ऐसा लगता है यार पैसा दुनिया में बहुत शॉर्टेज रहती है हमेशा. आप देख लो ना, आपके नजदीक के 10 लोगों से फोन करके उनको बोलो यार आई एम स्ट्रगलिंग इन माय बिजनेस, आई रिक्वायर 1 लाख रुपीस. 10 कॉल करो, कितने लोग पैसा देंगे? कितने देंगे? बहुत रेयर. My question is not to you, my question is to who are watching this interview. Okay, take the phone, call 10 people and ask them कि I am in trouble, just give me 1 lakh rupees. Okay, so 10 में से मुझे नहीं लगता एक हाथ दो भी लोग आपको देंगे when it comes to money, right? Correct. बहुत कम लोग देते हैं. So people are in trouble for making money. Number one, people are in trouble to hold that money. Okay, and people are in trouble to grow that money as well. In these 3 areas people are struggling. पहला तो मेकिंग मनी पे स्ट्रगल चल रहा है. जो पैसा बना लेता है उसको ये प्रॉब्लम है टिका के कैसे रखूं, which is bigger problem than not having money. Not having money is a problem, but having enough money, more than enough money, is the biggest problem. Okay, exactly. ये problem है. And third one क्या है कि many people is having cash in hand, cash in equity shares as well, but they are not able to grow their money. Okay, so we started to helping people because हमने पैसा बनाने के अलग अलग तरीके सीखे, एसेट्स के अलग अलग तरीके सीखे. पैसे को टिका के रखने के लिए हमने द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर के प्रोग्राम किए, MMI प्रोग्राम किया. हम जैसे सिद्धार्थ सर करते हैं, when he comes to picture TWCGO, he used to say ना, पैसा जैसे ही आया 5 अकाउंट में बांट दो. TWCGO, टैक्स, वेल्थ, चैरिटी, ग्रोसरी, TWCGO एंड ऑपरेशन, जो अपने ऑपरेशन के लिए लगते. सो मनी कम्स इन, वी जस्ट डिवाइड इट. अगर छोटा बच्चा है, एक उसको आइसक्रीम का अपने कोन लेके दिया, उसके हाथ छोटे हैं और उससे वो गिर जाता है और वो बोलता है कि एक साथ 3 लेके दो, तो क्या 3 लेके देंगे आप? नहीं लेके देंगे ना. तो छोटा जो पैसा है, अगर आप उसको मैनेज नहीं करना सीखेंगे तो भगवान को पता कैसे चलेगा कि आप बड़ा पैसा भी मैनेज कर सकते. when you will manage money which is in your hand right now, okay, then only God will give you more money to manage. Okay, many people say ज्यादा पैसा आएगा तब मैनेज करूंगा. अरे बाबा ऐसा नहीं है, पहले मैनेज करो, then it will come. Right, Sagar ji? Yes. So, like इस तरीके से ये चला and we found that many people are struggling and we have started our journey with them to help them to increase their cash flow. And भगवान की कृपा से मैं आपसे जरूर कहूंगा, सिद्धार्थ सर, सुधीर कोच सर, then we met Ravindra Pawar sir, Neena ji, and many more people as well. Shankar Kulkarni sir, Sandeep Gupta sir, Vivek Mashrani sir. इन सब लोगों ने ऐसी एनवायरनमेंट हमने बना के रखी कि दे पुश्ड अस एज वेल. ओके, दे पुश्ड अस एज वेल एंड वी डिड वेरी वेल. अमेजिंग. मेरा 18 महीने का पैसा डबल करने का मेरा रिकॉर्ड था स्टॉक मार्केट में. ओके, एंड माय स्टूडेंट्स आर गेटिंग इन 12 months. ओके, दे आर डबलिंग देयर मनी विद नो स्ट्रेस, बिना ब्लड प्रेशर के टैबलेट से. सो ये होता है जब ऐसी एनवायरनमेंट के बीच रहते हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर मिस्टर थैडियस लॉरेंस यूज्ड टू से दैट योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर. Yes. So be in that particular environment. Yes, over to So you. if अगर आप कुछ हमको मतलब टिप्स देना चाहते हो, जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो चाहते हैं कि कैसे वो पैसिव इनकम बना सके, आप क्या मतलब टिप्स
दे सकते हो उनको? ओके, टिप तो अभी देखिए सागर जी, कठिन प्रश्न पूछ लिया आपने। ओके, पहला टिप मैं उनको ये देना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द सोर्सेस which can be cash flow generating assets for you, or you can say passive income generating. It does not matter कि passive income 100 रुपए आती है या 200 रुपए आती है, it does not matter. Okay, it does not matter. If someone saved 25,000 rupees और वो पोस्ट में जाके 25,000 का बॉन्ड बना लेता है, ओके, एंड उस 25,000 के बदले में उसको 2,000 रुपए मिलते हैं, दैट इज ऑल्सो पैसिव इनकम, है ना? सो देयर आर मेनी वेज टू क्रिएट पैसिव इनकम. सो मैं उनको पहली टिप ये देना चाहता हूँ कि चेक कीजिए, रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़िए, आपको पता चलेंगे कौन कौन से उसके अंदर पैसिव इनकम के सोर्सेस हो सकते. फिर आप चूज कीजिए, क्योंकि बिजनेस भी एक एसेट क्लास है, रियल एस्टेट एक एसेट क्लास है, स्टॉक मार्केट एक एसेट क्लास है, पेटेंट्स एक एसेट क्लास है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट क्लास है, डिजिटल कोर्सेज एसेट क्लास है, बहुत सारे. आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा सूट होता है, कौन सा रिजोनेट होता है, स्टार्ट बिल्डिंग दैट एसेट विच विल गिव यू कैश फ्लो. ऐसा रातों रात नहीं होगा ये, बट एटलीस्ट आपका ध्यान वहां जाने लगा, जहां फोकस जाता है वो चीज बढ़ती. अगर आपको नी पेन है किसी को, अगर आप नी पेन के बारे में सोचते रहोगे तो इट विल इंक्रीज. Correct. If you'll focus on assets will increase. Asset will increase. है ना? But focus goes, energy flows or something. Correct. Focus goes and energy flows. So पहला मेरा ये टिप है कि वो उन्होंने देखना चाहिए कौन सा एसेट क्लास, कौन कौन से एसेट क्लास है, उनमें से कौन सा उनको अच्छा लगता है. One of our student, Mr. Mukesh Judeja, in our community, he used to work in very good story, Volkswagen company, is manager, and they both couple are very passionate about the real estate. So they have started one YouTube channel where Pooja Dudeja, his wife, she goes and she used to check the all property, and they used to make with their partner one video. So Pooja and the other person is partner in that company, and Mukesh is helping hand. Okay, so वो पूजा पूरा देख के आती है और ये वे बंदा पूरा वीडियो बनाता है, then they edit the video and they upload the video. So उनके पास क्या होता है कि लीड आती है, इंक्वायरीज आती है, एंड वो जो पार्टनर है वो उनको साइट दिखा के आता है, पूजा का जो पार्टनर है साइट दिखा के आता है, सब आता है, और फिर ये तीनों मिल करके वीकेंड पे उनके साथ बैठ करके डील फाइनल करते हैं. तो जितना उनका सैलरी है, उतना सैलरी जो 1 साल का है उतना 3 महीने में कमाया उन्होंने. Wow. In 3 months. Why? Because first Mukesh Dudeja came and played board game cash flow, then he bought Pooja Dudeja and Pooja played also, and then she has come to know, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? Then they have created. Now they are celebrating with almost 20 people in their company. They have formed a private limited company, so they are creating asset. After some time मुझे नहीं लगता उनको नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी. So anybody, tip for you is just find out which asset class is best for you and go for it. Great. Focus on creating asset, भले उसमें टाइम लगेगा. एंड लाइक ये जो कैश फ्लो गेम होता है आपका, ये वो बेसिकली सब लाइव होते हैं या ऑनलाइन भी आप इसको ये करते हैं? सागर जी, ऑनलाइन तो रिच डैड की जो साइट है रॉबर्ट कियोसाकी साहब की, वो साइट पर ही ऑनलाइन खेल सकते हैं, पर ऑनलाइन खेलने में उतना मजा नहीं आता. मजा नहीं आएगा, वो फिजिकल खेलने में ही आता है. तो हम क्या करते हैं, फिजिकल खेलते हैं बोर्ड गेम कैश फ्लो, और फिर ऑनलाइन हम स्टॉक मार्केट के सेशन लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के, ऑप्शन सेलिंग के, राइट. तो उन्होंने बोर्ड गेम में जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑनलाइन सेशन लेते हैं. So it's a 2-in-1. Okay, 2-in-1 we used hybrid to meet model physically as well, we used to take online classes as well, so we help them into that particular segment. ग्रेट. सो लाइक अगर किसी को मतलब अटेंड करना हो, आप कहाँ पे कौन से सिटी में करते हो इंडिया में, लाइक इफ यू लाइक टू शेयर? Okay, see, we are from Maharashtra, so we started from Maharashtra. So पुणे में रेगुलरली होता है, पुणे में होता है, रेगुलरली होता है.
अच्छा। नासिक में होता है, नागपुर में होता है, एंड कोल्हापुर में होता है। उसके बाद आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो बैंगलोर में हमने बहुत सारे सेशन किए हैं। उसके बाद हमने दिल्ली में बहुत सारे सेशन किए हैं। अच्छा। चेन्नई में हम तैयारी कर रहे हैं करने की। हैदराबाद में हमारे हमारे ना चैप्टर्स है, फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी नागपुर चैप्टर, एफएफसीसी हैदराबाद चैप्टर, एफएफसीसी नासिक चैप्टर, एफएफसीसी मुंबई चैप्टर। तो भी हमारी जो भी हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करता है उसको हम उस चैप्टर में जोड़ देते हैं। फिर जहां पर होने वाला है सेशन, बैंगलोर में होने वाला है तो बैंगलोर में मैसेज जाता है कि इस तारीख को बैंगलोर में होने वाला है, सो यू नीड टू कम एंड यू नीड टू प्ले। So Like let's suppose let's take an example of आप पुणे से, तो how frequently आप करते हो उस पुणे particular? में लगभग 40-45 दिन में एक सेशन हो जाता है। ओके, 1.5 महीने में एक बार हो जाता है। ओके। हाँ, दिल्ली में 3 महीने में होता है, बैंगलोर में 3 महीने में होता है, मुंबई में 2 महीने में होता है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड द मोर यू प्ले द मोर यू बिकम रिचर। सो सेम पीपल विल कम एंड प्ले अगेन एंड अगेन। पहली बार में ज्यादा नहीं सीखता, दूसरी बार में और ज्यादा सीखता है, तीसरी बार में और ज्यादा सीखता है। आई प्लेड मोर देन 100 टाइम्स एंड आई अप्लाइड ऑल द स्ट्रेटजीज एंड बिकेम फाइनेंशियली फ्री। इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस। क्या होता है, आप वो खेलते हो ना तो आपकी सोच वैसी होने लगती है, सोच वैसी होने लगती है तो फिर विचार भी वैसे आते हैं, विचार ऐसे आते हैं तो शब्द भी वैसे होते हैं, शब्द वैसे होते हैं तो एक्शन भी वैसे होती है। इट बिकेम्स इन सबकॉन्शियस माइंड एंड इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। जैसे कार चलाते समय पहले ध्यान देना पड़ता है, राइट? फिर कुछ समय बाद आप बात करते करते भी कार चला लेते हैं, कार अपने आप चल रही है, बात भी कर रहे हो, रेडियो भी बजा लेते हो, ग्लास भी ऊपर नीचे कर लेते हो, साइड ग्लास भी एडजस्ट कर लेते हो, पानी भी पी लेते हो, है ना? सो इट बिकम्स नेचुरली। पूरा सबकॉन्शियस माइंड में पूरा है वो। यस, वो So बार अगर बार खेलने से। बार बार, तो आपने जो बोला एक्चुअली फाइनल यू बिकम फाइनेंशियल फ्री, तो हाउ विल आई नो दैट ओके आई एम फाइनेंशियल फ्री? क्या उसमें क्राइटेरिया होता है, मतलब क्या पैरामीटर आप मेजर करते हो? ओके, देखिए 2-3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है, योर पैसिव इनकम इज ग्रेटर देन दी योर एक्सपेंसेस। अच्छा। इट डजंट मीन कि आपके पास करोड़ों रुपए होना चाहिए। See, suppose if anybody is having 70,000 rupees expenses and he is having 80,000 rupees as a passive पैसिव income, पैसिव इनकम, ओके। तो उसकी जो 70,000 की लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को बिना धक्का लगाए वो पे कर सकता है। करेक्ट। करेक्ट है? आराम अब से। वो काम नहीं भी करे तब भी वो 80,000 आता रहेगा पैसिव इनकम का, और ये 70,000 खर्चा होगा, उसकी लाइफस्टाइल मेंटेन रहेगी, 10,000 उसके पास और एक्स्ट्रा है। That is called, wealthy person. वेल्दी पर्सन। वेल्दी पर्सन इसको कह सकते हैं। अपन कहते हैं ना, जिसकी हेल्थ अच्छी है वो हेल्दी पर्सन है। हेल्दी तो अगर पर्सन। किसी का ऐसा अगर सिस्टम है तो ही इज अ वेल्दी पर्सन। ओके, तो यस। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा, फिर जब आपको फॉर्मूला पता चल जाता है, तो फॉर्मूला पता चल गया तो लाइफस्टाइल को बढ़ा लो, थोड़ा अच्छा कर लो, 1 लाख तक लेके जाओ, और पैसिव इनकम को 1,20,000 कर दो, है ना? देन 1,20,000 कर दिया, फिर अच्छी लाइफस्टाइल पे आ गए, फिर सपने आपके बड़े होते हैं, खर्चा थोड़ा बढ़ता है, फिर पैसिव इनकम को बढ़ा लो, 1.5 लाख कर लो, ऊपर ले जाओ, 2 लाख कर लो, 3 लाख कर लो। एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगेगा यार महीने का इससे ज्यादा खर्चा ही नहीं होता, कितनी भी आप छलांगे लगा लो। महंगा चावल खाओगे, खा खा के कितना महंगा खाओगे ना, 500 रुपए का एक चावल तो कभी आया ही नहीं ना, बराबर है कि नहीं? तो खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान कितना लगेगा ज्यादा से ज्यादा, सिटी वाइज 10,000, 15,000, 20, 25, 50, 1 लाख रुपए, बराबर है? तो एक वन सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम रोजमर्रा के खर्चे लिमिटेड होते हैं, पर आपकी पैसे इनकम बढ़ती है। एट दैट टाइम आप विलासिता की चीजें खरीदो। इफ योर पैसिव इनकम इज देयर, यू कैन बाय दी कार, you can buy the boat, आईफोन, ऑल दिस थिंग्स। yes, all these things, right? आपको क्या लगता है कि जो कॉमन मिस्टेक्स जो अभी लाइक नॉर्मली लोग करते हैं व्हेन इट कम्स टू कैश फ्लो मैनेजमेंट, कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि उनको अवॉइड करना चाहिए? See, first they need to understand कि money rules them or they rules money. आप those who are watching this interview ना, ask yourself कि मैं जो भी काम करता हूँ वो क्यों करता हूँ। ज्यादा 80-90% पीपल विल से कि पैसे कमाने के लिए तो काम करना ही पड़ता है ना, तो पैसे कमाने के लिए जाता हूँ। सो मनी रूल्स देम, ओके?
मनी रूल्स देम। वो 3 इडियट पिक्चर देखा है आपने? 3 इडियट, हाँ। हाँ, वो क्या बोलता है उसमें, काबिल बनो बच्चा, काबिल सक्सेस झक मार के आएगी। सो people are not focusing on their personality, increasing their Yes. skills, gaining Yes. more knowledge, Hmm. doing new things, getting out of comfort zone. They are not doing these things. Okay, if your personality will become great, or money will automatically come. यार, धोनी का सिर्फ एक चेहरा दिखा दो आप, तो करोड़ों रुपए की रॉयल्टी मिलती है उनको। क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने कहाँ काम किया है? उन्होंने थोड़ी उसके ऊपर काम किया, रेलवे में नौकरी लग जाएगी, चला जाऊंगा, टीटीई बन जाऊंगा, है ना? उन्होंने मेहनत किया, खुद के ऊपर काम किया, देश के लिए, सिटी के लिए, राज्य के लिए, एंड दे बिकेम लाइक ग्रेट पर्सनालिटीज। सो मेरा तो एडवाइस यही है कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर पर्सनालिटी, स्किल, नॉलेज, योर एटीट्यूड, योर हैबिट्स। यू नीड टू डू ऑन डेली बेसिस वर्क ऑन योर पर्सनालिटी। So जब आपका इनर गेम सही होगा तो आउटर गेम सारे सब ठीक होते जाएंगे। एब्सोल्युटली। And इनर गेम जो है वो इनविजिबल है, आउटर गेम जो है वो विजिबल है। लोग आउटर गेम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना? करेक्ट। सी, एक पेड़ है, उसके ऊपर फल लगे हैं, वो फल विजिबल है, लेकिन वो फल आए कहाँ से हैं? जड़ों से आए हैं ना। करेक्ट। जड़ें दिखती नहीं है, वो इनविजिबल है। तो अदृश्य चीजें दिखने वाली चीजों का निर्माण करती है। तो अदृश्य चीजों पे लोग काम नहीं करते। If they will work on those areas which is hidden, okay, result will appear. If you want to change your fruits, you need to change your roots. Simple way में ऐसा कहा जा सकता है। करेक्ट। सो अगर जैसे एक थोड़ा सा ये पर्सनल क्वेश्चन होगा, लाइक अगर मतलब जैसे कि आप एक्सपर्ट हो, आप इस कैश फ्लो गेम से शायद कितना 10 साल से ऊपर कर ले होंगे। ज्यादा हो गए, यस। ज्यादा हो गए, उससे ज्यादा हो गए। सो लाइक इन दैट, लाइक how many like multiple sources of income you have made for yourself? At least I have 5 multiple income sources right now. 5 Yes. ओके। सो लाइक कितना ऑप्शन है, मतलब कि कितना अपॉर्चुनिटीज है, मतलब एक थ्रू आउट लाइफ टाइम हम मल्टीपल सोर्स को अरे बना सकते अपॉर्चुनिटी है सागर जी, अपॉर्चुनिटी हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत। एंड इसके लिए मतलब क्या रिसोर्सेस है, जैसे कि आप अगर सपोज आप अपनी जो कोचिंग में अपने जो कम्युनिटी में आप क्या सिखाते हैं, कि कैसे वो लोग क्या क्या चीज आप सिखाते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, अगर सी सर, देखो, एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, राइट? सो वी हैव अ वेरी ग्रेट कम्युनिटी कॉल कैश फ्लो कम्युनिटी। उस कैश फ्लो कम्युनिटी में जो हमारे साथ साल भर से जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ लोग कैश फ्लो फैसिलिटेटर्स है, जैसे यू एंड मी फैसिलिटेटर्स इन ILH कम्युनिटी, राइट? है ना? सम ऑफ देम आल्सो, मेनी पीपल आर देयर। सो कुछ हमारी कम्युनिटी के लोग भी हमारी कम्युनिटी में कैश फ्लो फैसिलिटेटर। So one person, her name is Varsha Chiadu. She used to take care of kids financial education. तो वो क्या करती है, हमारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनके बच्चों को लेके बैठती है। शी लव्स टीचिंग विद किड्स, सो उनको वो फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती है। सो शी टेक्स केयर ऑफ कैश फ्लो किड्स एरिया। अनदर पर्सन टेक्स केयर ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर्स, कौन से अच्छे हैं, which broker is good broker, he need to take care. One another person is working on algo trading. Mukesh Judeja is looking after the real estate. Okay, we have our partner Sudhir Khoth. Sudhir Khoth is also digital coach. He used to coach business persons to increase their business. सो वो हमारे साथ में, तो कोई बिजनेसमैन आया तो वो ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ देयर बिजनेस, बिकॉज बिजनेस इज एसेट क्लास, रियल एस्टेट इज एसेट क्लास। वी हैव वन पराग सर एज वेल, हु टेक केयर्स ऑफ पेटेंट। तो किसी के पास कोई अच्छा विचार है, कोई प्रोडक्ट है, उनका नाम है, लोगो है, पेटेंट करना है, तो वी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट पेटेंट एज वेल। सो ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग हैं जो ये सब चीजों को देखते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसिव इनकम के लिए मैं देखता हूँ, मेरा भाई रहता है साथ में, इस तरीके से। ग्रेट। सो आपके अगर
टॉप 3 सक्सेस प्रिंसिपल पूछा जाए तो क्या है, मतलब आपके जर्नी में, तो आपकी क्या देना चाहते हो टॉप 3? यस। सी सर, टॉप 3 प्रिंसिपल ऐसे है. Number 1, it doesn't take money to make money. Many people है ना stuck in that, है ना, कि पैसे कमाने के लिए पैसा जरूरी होता है, जरूरी बट है। ऐसा कुछ नहीं. It does not take money to make money. Okay, it does not take money to make money. Even though this digital coaching business I have started, I take my credit card, swipe that credit card and bought this camera and this laptop and this ring light. Okay, and then I went through my journey. Okay, I went through my journey and made 87 lakh rupees with nothing ना. जो खरीदा मैंने, वो खरीदने के बाद उसको EMI में कन्वर्ट कर दिया, and I made money, then paid that EMI particularly, and paid that EMI, and its journey started from zero, reached to 87 lakh rupees. So it doesn't make money to make money is the first principle. The another one I would like to say, you need to work on your personal growth. Inner game. Okay, we just talk about it, the Yes, personal growth as well. And number 3, you need to remain with the good environment. Good If environment. you are in the good environment, okay, you will be winner. Yes. So these 3 principles I would like. I heard from this thing from, I think, Tony Robbins. He talks about proximity is power. Yes, So that yes. is a good thing. I think when it's come to just to like ask you this 87 lakhs you made through your coaching, I think most of the times I think you just started running ads. So you almost did organic. So what are the organic ways that you follow to actually build this business? Because many of you coaches are watching this, they are part of our community, and would you like to give some tips for that area? This was not my plan, but I thought, okay, let me ask this one. Okay, great question. Thank you for asking, Sagarji, this question. So when we started with Sudhir Coach sir, who is already coach, and I used to deliver my session in his community first. And first session was value adding session. I randomly went because I am a student. Yes, I'm a student. I did his course in I think 2019 January. I remember the date, 8th January, and it was a physical session, 2 days program in Pune. I went to Pune. I was the only person who enrolled from Dhule city amongst 50 people. I went there. I met 80 people. Priyank was also there. He was starting his career at that time. MV Priyank? MV Priyank also there. MV Priyank also given some that particular sound healing 10-minute presentation and pitch his product as well on that day. And we came back, and there were a session for stock market as well, and he said to me ki Vishal Malkan is there, and tab Vishal Malkan se jude. I was investing before that, but met Vishal Malkan, took his course, and I started sending on that group particularly my results. So पहले क्या होता था, नुकसान बहुत होते थे, प्रॉफिट कम होते थे. फिर क्या होने लगा, नुकसान कम होने लगे, प्रॉफिट बढ़ने लगे, नुकसान कम होने लगे, प्रॉफिट बढ़ने. मंथली स्टेटमेंट आई यूज्ड टू राइट एंड आई यूज्ड टू सेंड. एंड कुछ समय ऐसा आया कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का सिलसिला बंद हो गया, प्रॉफिट का ही सिलसिला बढ़ गया, एंड कंटिन्यूअसली 3-4-5 महीना ऐसा होता रहा. तो एक मैडम ने कहा कि आप आके सेशन ले लो यहाँ पे. And I went and take the session. 105 people in the room. They were very excited about the stock market, about the cash flow board game. तो फिर मैंने सुधीर सर से बात किया, मैं चालू करते हैं, मैं आऊं? बोले हाँ आ जाओ. तो कमर्शियल हमने उस समय रैंडमली डिसाइड किया, एंड मेरे पास कुछ लिंक नहीं था, कुछ नहीं था. आई जस्ट वेंट एंड आई जस्ट डिलीवर द प्रोग्राम. ओके, उस समय वेबिनार सेलिंग भी इतना ज्यादा पक्का नहीं था, हल्का फुल्का था, बट आई वेंट एंड आई डिलीवर्ड. सो 39 people registered with 2000 rupees. So 78,000 rupees was the revenue on that day. एंड उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि ऑनलाइन भी पैसा दिया जा सकता है, पैसा देते हैं लोग. एंड देन वी फॉर्म्ड अ कंपनी
both partners and made plan with each other. And then second webinar I delivered 12,500 rupees. Siddharth says na 2,000 to 5 times, which is 12,500 rupees. I nurtured those people. Okay, I nurtured those people. 78K देके जो 39 people आए थे. And then after 1 month after nurturing, I pitched the level 2 product, which is 12,500. 21 people registered on that day. Great. And immediately went Hall of Fame in just 2 webinars. Okay. In just 2 webinars I went, and then he always guided me because I was new to training industry. I was good at business. I was good at investing money. I was good at managing money. I was good at making money, but I was not good at training and coaching industry. Okay? So I need to learn that. So on one side, Siddharth is giving coaching me, but there is no one-to-one connection with Siddharth because he is having, great community, great numbers of people, great coaches, and he's top on that industry, right? He's the India's #1 leading coach. Okay. So our mentor is there. We are getting many things from him as well. But on the ground level, I require the hand-holding coaching. So Sudhir sir was partner in company, so he's guiding me. Okay. And Siddharth sir, Sudhir sir, Suren, those all are students of Blair. Correct. Okay, those all are students of Blair. And when I delivered the program in Sudhir sir's community, so people are watching. People were watching that. Then I used to say this कि 2 webinar में मैं Hall of Fame गया. Then Siddharth took my interview and Siddharth published. So many coaches जो है उन्होंने देख लिया, अच्छा जगदीश भगत नाम का कोई है ना, बड़े नाक वाला बंदा है कोई तो जो 2 webinar में in 50 days he hit 4 lakh rupees. So उन coaches को पता लगा. And then we met in some of the other program. So we used to talk with them about commercial of collaboration. So I explained some brokers. I made some brokers with them, and I convinced them for collaboration, but not in this way. I used to ask them that, would you like to come to my community to deliver value adding session? Once he came, he used to ask me, अभी आप आएंगे क्या? मैं चलो मैं भी आता हूँ. Then we decided commercial, and I think 7-8 people connected with me, like Sandeep Gupta, Shankar Kulkarni sir, many others coaches as well, Ravindra Pawar sir, Vinali Date from ILH. We connected with them. कुछ लोगों के साथ collaboration हुआ, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं चला because of their problem or mine problem as well. Some brokers are there, we connected with them, and some other people also which is outside the industry. Okay. We met them as well and we collaborated. So right now we have 17 collaboration, and we did organically and made 87 lakh rupees. Recently from December month I have started Facebook running ads. Yes, from December, and those are also going well. Sometimes stock market is hot niche as well. Okay. Yes, stock market. The ads are also going well, and conversion is also great. Day before yesterday I did the webinar. I think 99 people were in the room. 80 remained till the offer ended, and 27 people bought before ending the session, which is a good ratio, I think. Great. Right. That is like a very good, like almost 20% like conversion, and it is a very good. It's 33% conversion, and मैं आपको बताता हूँ. Okay, 80 out of 80, हाँ. हाँ. I would like to tell you, अभी तो मैंने अंगड़ाई भी नहीं ली है यार. अब स्केल होगा तो बहुत like it will be. अभी तो ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है. हाँ, अभी तो अंगड़ाई भी नहीं ली हमने. अभी तो हम समझ रहे हैं कि अच्छा ये धंधे का स्वरूप ऐसा है भाई. अभी तो हम समझ रहे हैं. अभी मैदान में तो अभी उतरने का समय है, अभी आएंगे. So like ये जैसे कि आपने बोला कि 33 कन्वर्जन रेट, लाइक क्या लगता है कि क्या डिफरेंट आप करते हो जो कि ये कोच को जानने की जरूरत है, या मतलब क्या ऐसे that actually help you a lot? कुछ भी डिफरेंट नहीं करता. Before delivering first webinar,
okay, which 12,500 Correct. webinar. Before delivering that webinar, I have watched Siddharth webinar selling formula 30 times. 3 times. Wow. 30 times. And I took the entire context as well. Context जो है उनका Context. as it is उठाया, and I added my own content. Okay, I added my own content, practiced 1 or 2 times, and then delivered. And they delivered. Okay, so Yeah, so even recently I also implemented the same what Siddharth talks about, and that formula itself game changer for a lot of people. Yeah. see, सिद्धार्थ के पास सिद्धार्थ नहीं था, हमारे पास तो सिद्धार्थ है ना, तो why not we use his knowledge ना. उन्होंने Correct. बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके अपने को अगर दिया है, तो अपने यूज जस्ट कॉपी पेस्ट बॉस. Correct. कॉन्टेक्ट उठाओ, कंटेंट अपना डालो और हो गया काम अपना, खत्म बात. It is not rocket science. Everybody can do that, Sagar ji. Yes. Anybody can do that. ABCD, anybody can do that. Anybody do that. Right. बहुत valuable lessons आपने दिया. Thank you so much, Jagdish ji. आप अपना precious time दिया. And any last thought before we wrap up this interview? Okay. तो देखो, सिद्धार्थ के साथ में इंटरव्यू हुआ था, तो एक मैंने कविता गाई थी वहां पर. अभी अपन यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन साहब की गाते हैं. वो बहुत इंस्पायरिंग इंटरव्यू था. मतलब आपका एनर्जी देख के कि दिस पर्सन आई हैव टू मीट इन लाइफ. And yeah, that also inspired me a lot. So yeah, please share that. हाँ, अभी हरिवंश राय बच्चन जी की जो आप सभी ने देखी होगी, पर उसको एक सुनते हैं, बढ़िया रिकॉर्ड करते हैं उसको. So शुरुआत उसकी ऐसी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौट आता है. डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौट आता है. मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में. आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो. असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो. क्या कमी रह गई है, क्या कमी रह गई है, माफ कीजिएगा. असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो. क्या कमी रह गई है, उसमें सुधार करो. क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. राइट. ग्रेट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. शायद मैं कुछ लाइंस भूल गया, मैं फिर से भी बताना चाहता हूँ. असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो. जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्षों का मैदान छोड़ यूं मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. अमेजिंग. थैंक यू सो मच जगदीश जी. एंड कैसे आप हमको, मतलब हमारे जो ऑडियंस है, कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं, कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो बता दीजिए. देखिए सागर जी, हमारा फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी के नाम से यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैंने द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर जो बुक है, उसको पढ़ के मैंने रिकॉर्ड किया है. सो दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू रीड द बुक, दे कैन एक्चुअली, वो हमारी कम्युनिटी के लिए किया, बट बाद में ऐसा लगा कि सबके काम का है, तो हमने पब्लिश भी कर दिया. एंड वी सेड दैट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो कि ये टी हार्व एकर साहब की किताब के बारे में वीडियो बना रहे हैं, उसमें चर्चा करेंगे. इसमें हमारा शब्द एक भी नहीं. सो दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने, उसका पहला पार्ट है. वहां से शुरू करके 17 वेल्थ फाइल तक के अगर कोई आता है, सो इट इज अ वेरी बेस्ड विच मनी का माइंडसेट पूरा चेंज करने वाली किताब है. एनीबडी कैन रीच टू अस
at that particular YouTube channel. एंड फिर उसमें नीचे हर वीडियो के नीचे हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है. अगर वो हमारी वेबिनार में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग सीख के पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, दे कैन join us through that particular WhatsApp group, and then they will get our webinar messages as well. Great. Right. Thank you so much, Thank Jagdish you ji. for giving this opportunity, Sagar ji. And I'll be sharing all the details in the description. Everyone, please check it out and do follow Jagdish ji. And once again, thank you so much, Jagdish ji, for coming. And salute to you as well, sir. thank you. Thank you.